Doctors and parents, a very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. Today in this session, we're gonna discuss about the NEET PD 2023 stray round rules and regulation, the Supreme Court case that whether upgradation will be allotted or not, what's the possibilities of getting a seat in stray round, as well as the list of candidates joining the All India round 1, 2, 3. The list has been already there. So approximately how much seats gonna coming up in your stray round, that is the last round of NEET PD 2023, and the history which I have already talked in the previous video that has been made. So in this video we're gonna discuss the complete information regarding on NEET PD 2023 last round of counseling, that is straight round of counseling, as well as we also gonna look up the state counseling happened, that exactly in which all the states what exactly happened, up to what rank people got the seat, while in the meantime what we have said in the since the beginning, since the day one, that even if you have made the NRI document, you won't be getting the seat. And this exactly has happened in this session also. Multiple of the candidates had made the document on the score of 120, 150, 190, 180, 220, 250. They didn't got the seat. In the meantime, people with the score of 100, 106, 107, 110, these candidates got the radio, derma, medicine, gynae, pedia, also in the multiple of the states. So exactly how this happened, so these details will be shared in this video. Before that, if you are new on this channel, if you haven't subscribed to our YouTube channel Admission Media, then do subscribe it, as well as do join our Telegram channel Admission Media, because whatever the latest update, the information, the PDF we are continuously posting there. As well as till now, if you haven't got the seat yet, or you haven't got any allotment, then what are the possibilities of getting a seat in the future, that in this session that you will be getting or not. So that we also discussing. Before that, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लें, चीज़ों को ज्वाइन करके रख लें, क्योंकि लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है, इसके बाद आपके पास सेशन नहीं होगा, आई मीन टाइमिंग नहीं रहेगी, काउंसलिंग कंप्लीट कर दिया जाएगा. बात करो एग्जैक्टली क्या हो रहा है स्टे राउंड के लिए, पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लें. दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइन द सीट इन ऑल इंडिया राउंड 1, 2, 3, और दोज कैंडिडेट्स हु हैज देयर रोल नंबर इन द एडमिटेड लिस्ट, आई मीन जो अलॉटमेंट, आई मीन कैंडिडेट एडमिटेड की जो लिस्ट आई है उसमें अगर आपका नेम है तो यू आर नॉन एलिजिबल फॉर द स्टेट राउंड. इन द मीन टाइम, इफ यू गोना ज्वाइन योर सीट इन योर स्टेट राउंड 1, राउंड 2 और इवन द राउंड 3, मल्टीपल स्टेट्स के राउंड 2 हो रहे हैं, कुछ स्टेट्स के राउंड 3 भी हो रहे हैं. इफ यू हैव ऑलरेडी ज्वाइन द सीट, देन स्टिल यू कैन पार्टिसिपेट इन द स्टे राउंड ऑफ योर ऑल इंडिया. मतलब कि अगर आपने राउंड 3 तक कहीं पे भी ज्वाइनिंग कर ली तो यू वोंट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द ऑल इंडिया स्टे राउंड, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 9th of October 2023. जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक NRI कन्वर्जन नहीं किया, इफ यू हैव ऑलरेडी मैनेज द डॉक्यूमेंट, और इफ यू हैव गॉट योर डॉक्यूमेंट्स एंड यू वांट टू विश टू चेंज योर कन्वर्जन और कन्वर्ट योर सीट, देन उसके लिए यू हैव टाइम टिल टुमारो इवनिंग, दैट इज 8th of October till 5 PM. यू कैन मेल द डॉक्यूमेंट्स, एंड इफ यू गेट वेरिफिकेशन, इफ यू गेट वेरीफाइड, देन अगेन you can apply for the NRI seat as well as the management seat. If I talk those candidates who has already applied in the round 3, still they haven't got the seat. In the meantime, Rajasthan, if I talk about the state counseling, Karnataka round 2 result has been published. 99.9% seat has been allotted. Only in the round 3, those seats will be vacating out. Those seats will be coming up for the round 3. If I talk how many seats, the very few seats will be coming. The reason is on the score of people, if someone has got the seat of on the score of 110, 120, 150, I won't be thinking that these people gonna leave the seat. Without any doubt, few seats will be coming up, but seats will be in very less amount. If I talk about the MP, since the beginning I have said the rules and regulation has been changed, and this is exactly happened. In MP, every candidate has went to try with the NRI seat. None of a single people got the allotment. Those who are not having a domicile of that particular MP state or have did the MBBS. Same thing exactly happened with the Rajasthan also. Rajasthan is also facing a very critical time, I mean critical time regarding your seat matrix. Since 2 days, there is no seats available for the all India quota candidates. Every seat is reserved for their state quota candidates. Once they will be over, then only other candidates can get the seat. Till now, the score with the, I mean candidates with the score of 400, 450, 500, they haven't got the seat and they are still trying. If I talk about the UP result, I mean round 3 result has been published today, and if you look at the counseling or the shift which is happening in round 3, a big and a huge negative shift is happened. If I talk about the exactly on what rank the last seat has been allotted, if I talk about the gynae, I mean if I talk about first we're gonna talk about derma.
17,000. Yes, on the score of 505 in mop-up round in the round 3, candidate with the rank of 17,000 had get the last seat of Dharma in UP. Medicine 59,000. Gynecology 55,000, that is 385 score. Ortho 55,000. TB chest 64. General surgery 74. If I talk about the pathology event, the candidate or the last seat has been allotted on the rank of 1,56,000, that is 197. मतलब कि यूपी के अंदर भी जो पैथोलॉजी की जिन कॉलेजेस के अंदर कभी पैथोलॉजी की सीट भी फुल नहीं हुआ करती थी, या जिनके कभी डिपार्टमेंट में पैथो की कभी ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ करती थी, इन दैट कोर्स कॉलेजेस ऑल्सो द लास्ट सीट हैज बीन अलॉटेड इन द होल यूपी. The last seat of pathology has been allotted on the score of 197. Anesthesia 248. ENT 258. Psychiatry 282. I am talking about the score. ये वो स्कोर हैं जो माइनॉरिटी कोटा की भी सीट है. I am not talking about the माइनॉरिटी कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जनरल कैंडिडेट्स उनके लिए अप्लाई कर सकते थे. इवन द हायर फी सीट्स हैज नॉट बीन अलॉटेड बिलो दिस स्कोर. MP, the lower candidates has got the seat if they have the domicile of MP, while the other people with the score of 250 haven't got the seat in MP. Rajasthan, same thing, no seats are vacant out. Bengal, West Bengal, already the result has been there. Overall, in each state as well as in each college, a huge negative shift has been seen compared to the since beginning. What positive shift or positive things has to be happened, nothing has been happened till now. If I talk about Telangana, the round 2 result has been already published. Again a negative shift. Every and each candidate has an NRI document in Telangana, so you can understand that what can be the situation. But till now, अभी भी हम आपको क्लेम कर रहे हैं कि अगर सीटें नहीं मिली हैं आपको, तो आपने जो भी बजट सोच के चला है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा. ऑलमोस्ट आपको डबल भी करना पड़ सकता है. अगर आप हायर क्लिनिकल ब्रांचेस रेडियो या डर्मा या मेडिसिन देख रहे हो या क्लिनिकल ब्रांचेस भी देख रहे हो, तो बजट इंक्रीज होने वाला है. बिकॉज एमसीसी हैज आल्सो पब्लिश्ड अ नोटिफिकेशन इन विच दे हैव मेंशन्ड दैट मल्टीपल ऑफ द इंस्टीट्यूट्स गोना रिवाइज देयर फी स्ट्रक्चर. सो बिफोर एक्सरसाइजिंग योर चॉइस फिलिंग, मेक श्योर कि उनकी एग्जैक्ट सीट मैट्रिक्स या एग्जैक्ट फी स्ट्रक्चर आप उनकी वेबसाइट से कलेक्ट कर लें. बिकॉज मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स अगेन गोइंग टू इंक्रीज देयर फी स्ट्रक्चर. मतलब कि ऑलरेडी जो ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं सेम कॉलेज में सेम ब्रांच लोअर फीस पे पढ़ेंगे, बट नाउ those candidates who will be getting the seat in stray round, their budget will increase. So since the beginning हमने बोला था कि NRI डॉक्यूमेंट बनाने से सीटें नहीं मिलेंगी, नॉर्मल भी सीटें मिलेंगी, एंड अच्छे खासे कैंडिडेट्स को भी सीटें मिली हैं. इफ आई टॉक अबाउट द स्कोर 110, 120, 130, 150 पे रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, गाइनी, पीडिया, ऑर्थो जैसे हायर क्लिनिकल ब्रांचेस भी अलॉट हुए हैं विदाउट एनी डाउट. बट द बजट इज वेरी वेरी हाई. इवन टिल नाउ अगर आपको सीटें नहीं मिली हैं, आप हायर क्लिनिकल ब्रांचेस भी देख रहे हो, नॉट टू वरी, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एज पर योर एलिजिबिलिटी. क्योंकि यहाँ पे क्रॉस चेंज हो रहे हैं, मल्टीपल स्टेट्स के रूल एंड रेगुलेशन चेंज कर दिए जाएंगे. अगर आपकी एलिजिबिलिटी उस पर्टिकुलर स्टेट में रहती है तो विदाउट एनी डाउट जहाँ पे भी सीटें वैकेंट आउट होंगी वहाँ पे आपको 110% अलॉटमेंट करा के दे सकते हैं थ्रू द लीगल वेज ओनली, एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ NMC, MCC, Supreme Court guidelines. Nothing fraud or फर्जी thing will be happen, because 95% कैंडिडेट्स के साथ यही चीज हुई थी कि डॉक्यूमेंट बनाया उन्होंने किसी और से, पेमेंट किया कहीं पे और, सीट बुकिंग की बात की गई थी, ब्लॉकिंग की बात की गई थी, एंड टुडे दे आर नॉट हैविंग अ एनी सीट विद देम. Even they have wasted around 10 to 15 lakh making in document and XYZ things, and till now no seat has been allotted. While if I talk about our candidates or those candidates who has believed in us or those parents who has believed in us, almost 95% कैंडिडेट्स को ऑलरेडी हमने सीटें अलॉट करा दी हैं मल्टीपल स्टेट्स और मल्टीपल कॉलेजेस के अंदर एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन. सो अभी भी आपको सीटें नहीं मिली तो आप कॉन्टेक्ट करें. आपकी जो भी एलिजिबिलिटी रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको सीटें अलॉट करा के देंगे. बट मेक श्योर आपके बजट आपको इंक्रीज करना पड़ेगा. अगर आपने ऑलरेडी इंक्रीज किया है तो उसको थोड़ा और पुश करना पड़ेगा, क्योंकि सस्ते में कुछ भी नहीं मिलने वाला है. इफ आई टॉक अबाउट दैट एग्जैक्टली हाउ मेनी सीट्स विल बी कमिंग फॉर द ऑल इंडिया स्टेट राउंड, ऑलमोस्ट 550 टू 650 के अप्रॉक्सिमेट, मतलब कि 550 से 750 के आसपास की सीटें आएंगी, इंक्लूडिंग क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, NRI, डीम्ड, मैनेजमेंट, सारी सीटों को इंक्लूड करके अप्रॉक्सीमेटली 550 टू 750 सीटें ही आने के चांसेस हैं एज पर द लिस्ट हैज बीन पब्लिश ऑफ द ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स.
जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइनिंग कर ली है ये फर्दर स्टे राउंड के लिए नॉन एलिजिबल हो जाएंगे। इन द मीन टाइम अगर आप अपने स्टेट काउंसिलिंग में जो भी सीट अलॉट हुई है उसको भी आपने ज्वाइन कर लिया तब भी आपकी एलिजिबिलिटी चली जाएगी और यू विल बी नॉन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द स्टे राउंड। तो जो एक शिफ्ट आने की बात हो रही है, लेट्स सी एग्जैक्टली कौन से ब्रांच की कितनी सीटें आ रही हैं, देन वी कैन एक्सप्लेन दैट कितना शिफ्ट इज, हाउ मच शिफ्ट इज एक्सपेक्टेड। बट अगेन not a very huge positive shift will be there, but some positive shift can be seen in the some lower clinical branches. But let's see exactly how many seats are coming in each branches. But overall approximately 500 to 700 तक ही सीटें आने के चांसेस हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। वेट करते हैं, आपकी काउंसलिंग ऑलरेडी 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट कर सकते हो, एनआरआई डॉक्यूमेंट रेडी है तो आप कल तक के लिए अप्लाई कर सकते हो। मल्टीपल स्टेट्स की सारी सीटें ऑलरेडी अलॉटेड हैं। इन अलॉटमेंट्स के बाद जो सीटें वैकेंट आउट होंगी उन्हीं के लिए स्टे राउंड होगा। विदाउट एनी डाउट स्टे राउंड में भी चीजें मिलेंगी, सीटें सबको अलॉट होंगी, बट इट विल टोटली डिपेंड अपॉन कि एग्जैक्टली आप कौन सा स्टेट टारगेट करते हो। क्योंकि मॉप अप राउंड में जितने लोगों ने भी गलतियां की हैं या जिन्होंने खुद से काउंसलिंग की है या जिन्होंने खुद से स्मार्टनेस किया है, जस्ट हियर इज एग्जाम्पल, डरमा की सीट 17,000 रैंक पे अलॉट होती है इन यूपी इन द राउंड 3। 23 की 25 की पर एनएम की फीस है 17,000 रैंक। आप अलॉटमेंट चेक कर सकते हो, 17,000 रैंक पे कोई डरमा लेता है यूपी के राउंड 3 में। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि सिंस द बिगिनिंग व्हाट ही वाज डूइंग। अगर अभी भी आप प्ले कर रहे हो, खुद से प्ले कर रहे हो, तो डू नॉट टू वरी, आप प्ले करो, बट इन द मीन टाइम डू अनफोल्ड योर बुक्स बिकॉज सीटें नहीं बची हैं, कहीं भी नहीं बची हैं। कोई भी प्रॉमिस कर रहा है कि अलॉटमेंट करा देंगे, फेक अलॉटमेंट या बुकिंग कर देंगे, ब्लॉकिंग कर देंगे, टोटली फ्रॉड थिंग। जो भी चीज़ें होंगी सारी लीगल वेज से होंगी, सारी लीगल तरीके से होंगी। सारी चीज़ों के जानने के लिए आप हमारे ऑफिसेज को विजिट कर सकते हो। अवर ऑफिस इन पुणे एंड बैंगलोर, यू कैन कम डाउन एनी टाइम एंड मीट अस एंड देन वी कैन प्लान अस कि एग्जैक्टली कैसे प्रोसीड करना चाहिए, कैसे आपको सीटें मिल सकती हैं, कहाँ पे मिल सकती हैं। लेकिन 110% अभी भी हम क्लेम कर रहे हैं कि अगर आपको सीटें नहीं मिली हैं, आप फेवरेबल बजट कंडीशन क्रिएट करते हो या ब्रांच कंडीशन क्रिएट करते हो या ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी रहते हो, तो विदाउट एनी डाउट आपका ईयर वेस्ट नहीं होने देंगे। आपको 110% सीट अलॉट करा के देंगे। कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, इन तमाम चीज़ों के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एज वेल एज डू विजिट अवर ऑफिस इन पुणे एंड बैंगलोर बिफोर कमिंग। डू टेक द अपॉइंटमेंट बिकॉज एवरीवन इज बिजी इन देयर शेड्यूल। सो आने से पहले अपॉइंटमेंट लेके मिलें एंड विदाउट एनी डाउट अगर आप प्रोसीड करते हो, चीज़ें प्रोसीड करते हो, तो विदाउट एनी डाउट वील गेट द सीट फॉर यू। कैसे प्रोसीड करना है इन तमाम चीज़ों के लिए विजिट डाउन। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो आई विश कि जिनको भी सीटें नहीं मिली है मिल जाएं। फर्दर रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी होगा मैं आपको वीडियोस बनाते रहूँगा। मीन टाइम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी शेयर करें, एज वेल एज डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया, बिकॉज जो भी PDF होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी या कहीं कुछ नेगोशिएशन की 1% की भी उम्मीद रहेगी तो वो भी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। बट 99.9% इज कन्फर्म दैट नो नेगोशिएशन विल बी डन बिकॉज 197 के नीचे पैथो भी नहीं मिला है यूपी में। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि डिमांड क्या है। अभी भी 500, 450, 400, 300 के कैंडिडेट्स अभी भी रोम कर रहे हैं यहाँ से वहाँ कि सीटें मिल जाएं। लेट्स सी क्या करते हैं ये, कैसे इनको सीटें मिलती हैं या ड्रॉप के लिए जाते हैं। मीन टाइम अगर आपको कंफर्म सीटें चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, बट द कांटेक्ट डिटेल्स आर 9545935519। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।